Good afternoon, one and all, and welcome to the second last pre-event of Social Media Day Gujarat 2021. And I'm very happy that I'm conducting this session because मेरे साथ जुड़े हैं my old colleague, my very good friend, Mayur Badolia. Hi, Mayur, welcome. Hi, Bautik. Hi, everyone. Okay, guys. So, Mayur ko introduce karna is always a great thing for me, and I think there are so many people who knows him very well. So basically, Mayur is an author and business consultant. He has helped so many people in the businesses to lead the way about what will make their customers buy from them. And also as a business consultant, he guides people to enjoy doing what they do rather than just running the business, which makes people bored and tired. And we have a highly regarded business consultant with us, and absolutely we are going to expect a lot of things from him. And I understand that he is going to guide us on how to make people buy our products before actually selling. So guys, it is very interesting topic that we have selected, and looking at the current situation, current scenario since last March 2020, March 2020, I think we have to talk a lot about sales. And I, being a digital marketing consultant, in the last 1.5 years, I'm getting so many inquiries, not on the marketing, but rather than for the digital sales. But when we talk about the sales, there are other things also that we need to understand. और उसी के बारे में आज मयूर हमें बताएंगे, because we are going to talk about pre-selling. So Mayur, I just want to understand that what is the concept of pre-selling? होता क्या है? Pre-selling होता क्या है? Thank you very much, first of all, Bautik. आपने मुझे बुलाया और काफी अच्छी तारीफ की मेरे बारे में. Thank you very much. So, like you said, sales is a fuel of any business. सबको सब कुछ आता है, लेकिन सेल करना नहीं आता, बिजनेस नहीं चलेगा. बट यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियां जो लोग करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा. और देन आई विल कनेक्ट विद द प्री सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे याद है 2016 की बात है, जब मैंने एक टॉपिक सोचा कि भाई हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन के ऊपर एक कुछ वर्कशॉप करूं. कुछ नोट्स नहीं थी, कुछ भी सिलेबस नहीं था, और मैंने ऐसे ही तारीख डिक्लेयर कर ली. और समझो 15 दिन के बाद डेट थी, तो nearly 20 people book. But I don't want to do that. I was happy that 20 people turned up, but it was a gamble. And we can't do gamble all the time. If I take you back, I think it's somewhere in 1975 or something, जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी, if you know, तब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था. और शोले की खास बात यह कि शोले जब रिलीज हुई, उसके 2-3 हफ्ते तक कुछ भी सेलिंग नहीं हुआ था. इट वाज लाइक इट्स गोइंग टू गेट डम्प, और उसको उतारने के लिए सोच रहे थे. बट देन आफ्टर सडनली उसका क्रेज बढ़ा. और आप जानते हैं, जैसे कि वहां पे मिनरवा थिएटर में 5 साल तक रन की थी वो मूवी ने, कि बाद में उसका सेलिंग बढ़ गया था अचानक से 3 साल के बाद ही, 3 हफ्ते के बाद. ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है. जनरली हम लोग ऐसा ही करते कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे ही धड़ाम से हम लॉन्च कर देते हैं, चालू कर देते हैं. वी एक्सपेक्ट पीपल टू फ्लडिंग, एंड दैट इज द रॉन्ग वे टू सेल. एंड one thing that you understand, or we all need to understand, that people don't buy when we want to sell, right? Yeah. Most people think a lot before they actually buy. True. They prepare themselves to buy, and they are watching us. They are observing our every single move. True. जैसे कि मुझे याद है, अभी आई थिंक अपनी जो लास्ट मुलाकात हुई थी आपके न्यू ऑफिस के ओपनिंग के दौरान में आपको मिलने आया था. yeah. तो आपने कहा था कि कई लोग हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन वो कभी बताते नहीं हो कि देखते हैं. वो लाइक नहीं करते, बट दे नो व्हाट वी आर डूइंग. एब्सोल्युटली, यस. वी थिंक कि वो लोग बैठे बैठे बस वो कहीं खो जाते हैं, हमको पहचानते, बट दे डू ऑब्जर्व अस. नाउ हम क्या है कि हम जब भी सेलिंग करते हैं तो हम ऐसे धड़ाक से अनाउंस कर देते हैं, वी एक्सपेक्ट पीपल टू फ्लडिंग, बट दे आर नॉट रेडी टू बाय. नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग, दैट डू यू नो, जब कार लॉन्च होती है तो आपने लॉन्चिंग देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये भी देखा होगा उसके 4 या 5-6 महीने पहले से उसकी लॉन्चिंग की खबर आनी शुरू हो जाती है. True. Yeah. लाइक फॉर एग्जांपल, एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी है जो जिसको मतलब नाम ही काफी है, लोग उसके नाम सुन के ये लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी अभी देना शुरू किया, बाकी पहले तो देते भी नहीं थे. बट दे ऑल्सो डू द प्री सेलिंग.
एंड दिस इज द रीजन, ये प्री सेलिंग के दम पे ही वो लोग अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सेलिंग के दम पे नहीं बेचते हैं। दे डोंट डू द ट्रेडिशनल, लेट्स से सेलिंग नहीं करते, डोर टू डोर सेल्समैन करना, दुकान पे बैठ जाना, डिजिटल मार्केटिंग भी वो शायद नहीं करते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दे डू प्री सेलिंग। वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के 6 महीने पहले या 3 महीने पहले कुछ कहते हैं कि एक नया अपडेट आने वाला है भाई, एंड यू कीप एन आई, और सडनली बाकी सब मीडिया उसका नोट करते हैं, फिर कहते हैं कि ओके एप्पल इज गोइंग टू डू समथिंग, 2 महीने के बाद अपडेट आएगा, 3 महीने के बाद आएगा। व्हाट आर दे वर्किंग ऑन? इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन देम, एंड धीरे धीरे करके एप्पल वाले अपनी खबर देते हैं, ज्यादा खबर कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी तक फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे वो लोग, फाइनल प्रोडक्ट तो खाली लॉन्च के दौरान ही बताएंगे, लेकिन तब तक एक बज़ क्रिएट करते हैं। अगेन देखो, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं कर रहे वो लोग, दे आर नॉट पेइंग एनी मनी ऑन फेसबुक एड या यूट्यूब एड, गूगल एड, कुछ भी नहीं कर रहे, दे आर डूइंग फॉर फ्री एंड दे आर नॉट इवन सेलिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेल की बात आती है तो पहले दिमाग में ही बात आता है कि भाई लोगों को पुश करना कि भाई भौतिक मेरी प्रोडक्ट खरीद लो, ये बहुत काम आएगा, आपके धंधे को आगे बढ़ाएगा। दिस इज नॉट समथिंग टू डू विथ प्री सेलिंग। प्री सेलिंग क्या होता है कि हम जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाए उसकी एक इवेंट होती है, वो इवेंट के पहले तैयारी करनी पड़ती है, उस इवेंट के बारे में बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी दिवाली कब होती है, नवंबर के टाइम पे, राइट? राइट। एंड मुझे अभी पता है कि हर दिवाली पे आप चौपड़ा पूजन के पहले आप चौपड़ा खरीदने भागल पे जाते हो, यू नो ट्रेडिशनल ओल्ड गली मोहल्ले दुकानों से आप खरीदते हैं। लक्ष्मी पूजन के दौरान वो लाल जो पूठे वाला बुक होता है, यू बाय दैट। कितने दिन पहले बाय करते हैं आप? मोस्ट प्रोबेबली 7-8 दिन पहले। ओके, 7-8 दिन पहले होता है। मतलब दिवाली तो एक ही दिन होती है, राइट? बट इफ यू नो, दिवाली के 3 महीने पहले से एक बज़ शुरू हो जाता है कि भाई दिवाली आने वाली है, धंधे वाले जो होते हैं वो अपने प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, नई नई क्वालिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। कई सारी कंपनीज दिवाली को ध्यान में रख के प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि दिवाली पे लोग खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो जो नए मोबाइल लाते हैं। इवन दिवाली के मौके पे फिल्में बनाई जाती है, यू नो दैट दिस दिवाली। सो दिवाली एक इवेंट है, लेकिन उसकी तैयारी कितने महीनों से शुरू हो जाती है। एंड वो जो एक्साइटमेंट है कपड़े खरीदने की, पटाखे खरीदने की, जो आप जो बुक खरीदते हैं वो खरीदने की, और धीरे धीरे करके आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। एंड देन द दिवाली डे केम, और दिवाली के दिन तो अपना काम तो खाली कुछ घंटों का होता है, लेकिन ये जो इवेंट है वो इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने दिनों और महीनों की हम लोग तैयारी करते हैं, राइट? ये इसका बखूबी उपयोग, प्री सेलिंग का बखूबी अगर उपयोग जानना हो तो द बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड इंडस्ट्री, कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो ऐसे ही फटाक से अपनी सिनेमा में फिल्म रिलीज कर ले। दे एक्चुअली प्री सेलिंग। आप देखना कि कभी कभार आप पेपर में न्यूज पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सलमान खान का नया लुक, ये खाली खबर है, दे आर नॉट इवन सेलिंग द मूवी। सी, दे आर जस्ट गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन about their new product. Now people become curious कि क्या कर रहा है, देन नया लुक आता है, फिर सोचते हैं कि यार एक्शन मूवी है क्या नहीं, फिर धीरे धीरे करके एक और इंफॉर्मेशन आती है कि ये सलमान खान इज मीटिंग अनुराग कश्यप, एंड देन पीपल स्टार्ट वंडरिंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन, boom, and then they create more curiosity, and then you see Salman Khan meet Anurag Kashyap along with let's say Deepika Padukone, and then the new buzz comes. फिर धीरे धीरे करके वो लोग अनाउंस करते हैं, देन द वन पोस्टर कम्स, एक मुहूर्त होता है पोस्टर, एंड पीपल लुक एट द पोस्टर, एंड यहाँ पे 20% सेलिंग हो जाती है उनकी, राइट? फिर बाद में वो लोग टीजर बनाते हैं 30 सेकंड का, फिर फुल फ्लेश ट्रेलर। अभी तो आपने देखा ट्रेलर भी अभी वो लोग धूम धड़ाके से लॉन्च करते हैं, यू माइट हैव सीन ऑन यूट्यूब। पहले वो जमाना था कि ऐसे ही ट्रेलर डाल देते थे, अभी तो वो लोग उसका भी इवेंट बनाते हैं कि ट्रेलर ये तारीख को आएगा। This is not what we do in our business. True. और प्री सेल बहुत ही जरूरी है कोई भी बिजनेस में ना। यहाँ पे 2 टाइप के प्री सेल, एक तो समझो कि भाई 1 से लेके 2 महीने तक का प्री सेल आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप। बाद में दूसरा टाइप है ऑन गोइंग प्री सेल, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पर जो 1 महीने 2 महीने के पहले का जो लॉन्च होता है उसमें आपको लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। अगेन, डू नॉट सेल। लोगों को आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी है, दे आर नॉट डेस्परेट टू बाय योर प्रोडक्ट, राइट? दे जस्ट वांट टू नो, और बहुत टाइम लगाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यू माइट बी नोइंग, दोज हु आर वाचिंग राइट नाउ, दे आल्सो नो
कि एक अगर मोबाइल भी खरीदना हो तो कितना महीनों पहले से सोचना पड़ता है। रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड वांटेड टू बाय अ कार, राइट? तो उसको एक एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी थी। So he's been thinking and he thought for almost about 2 months. Now he's actually anyway going to buy probably Kia Seltos or something. But then Hyundai की एक नई मॉडल आई, I think Alcazar or something like that. Now Alcazar का जब थोड़ा पहले इंफॉर्मेशन मैंने उसको शेयर किया कि देखो ये गाड़ी आने वाली है, so he actually stopped, his decision. He waited for the Hyundai's new model. Now he's probably going to buy that one. Now एक कार कंपनी भी ऐसा ही काम करती है कि ऐसे फटाक से मॉडल लॉन्च नहीं करती, दे प्रिपेयर वेल इन एडवांस। उनकी प्रोडक्ट रेडी होती है, फिर भी एक थोड़ा टीजर दिखाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं। आप देखना कार के कितने शो आते हैं टीवी पे, तो उसमें रिपोर्टिंग करवाते हैं कि उनकी कार की खूबी के बारे में बताते हैं। दिस इज एक्चुअली प्री सेल। They are not selling you anything. They are not showing the landing page. They're giving the information about the product, so that you create the buying decision from in your heart and mind. They are not convincing you to buy. They are giving you little bit information so that you convince yourself to buy that. Right? लोग हमेशा खरीदने के लिए टाइम लगाते ही है. People become curious. People just it generates interest in them, and अभी आपको खाली इंटरेस्ट ही जनरेट करना है। सो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करो उसके 1 महीने 2 महीने पहले छोटा सा हिंट दो कि आप क्या कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आप जो अभी कर रहे हैं, लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, इट्स अ प्री सेल बाय द वे। Absolutely, we are doing it. You are not trying to sell your social media day event. You are just creating the curiosity in people, and that's exactly what people need to do. True. I remember that about a couple of years ago when I launched one of my courses, I just did not sell. I just said, okay, this is something what I'm working on right now. And I did not even share on the Facebook. I shared with my some personal friends into WhatsApp, and boom, that's it. I did not say कि ये कोर्स में आऊंगा, उसमें आपको करना है, एनरोल होना है वगैरह, कुछ भी नहीं कहा था। मैंने खाली इतना कहा कि मेरा सेल्स पिच का एक वर्कशॉप है, इसके बारे में कुछ डिजाइन बना रहा हूँ। So I just shared some pictures of it, and then people actually ask me, so what exactly it is all about. Now here's the magic. In this situation, people who are curious, they are actually going to buy. I mean 50% they're going to buy, but they are not too sure 50% क्यों नहीं बात कर रहे, because they are curious कि भाई इसमें क्या है। These people will actually ask you question, and this will help you to fine tune or design your product. लोग क्या करते, जैसे कि अपने आप डिजिटल मार्केटिंग में है, मैं बहुत सारे डिजिटल मार्केटर को जानता हूं, लेकिन आपके जितना डेडिकेटेड जो कहते हैं ना मूवमेंट चलाने वाले, वो खाली आप ही हो। सो व्हाट यू बीन डूइंग एज वेल कि भाई आप भी अपनी जब कोर्स लॉन्च होता है उससे पहले आप थोड़ा हिंट देते हो कि आप ये करो, देखो हम लोग ये कर रहे हैं। आप कुछ भी पुश नहीं करते, एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू। नाउ शेयर योर प्लान्स। आप अपने प्लान बताओ लोगों के, भाई हम ये कर रहे हैं, आपके इंटेंशन बताओ। Even Tata is doing the same thing. Tata Industries, when they are doing something, when they are working on a project, they just share the news कि हम लोग एक कार के ऊपर काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक कार होगी, राइट? हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोग पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, whatever, they share the news, they just share their intention. दूसरा प्री सेल होता है कि भाई आप कुछ सैंपल बनाओ, राइट? आप सैंपल बना के लोगों को दो। Maybe you are creating a product or something like that. You share them in a picture of it or something. Maybe those who are the nearest one, the dearest one, you can share your product with them. Sampling always works. Sampling always works. So create sample, get people to try on it, right? अब कुछ चीजें ऐसी है जो लोग ट्राई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खाने की चीज बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सैंपलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप कभी 5 स्टार में खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो डिश का नाम होता है, वो डिश के नाम के नीचे 1 या 2 लाइन में कुछ भारी भरकम शब्द होते हैं। जैसे I don't know, marinated and garnishing of blah blah. So with the words they create the image कि ये फूड बनने के बाद कैसा होगा, आप खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, and all those kind of things. So maybe you need to articulate your product, your samples, and then also one interesting thing, आप जानते हैं कि आप कैलेंडरली आपको पता होगा ऑनलाइन स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, और जब मैंने आज से 5-6 साल पहले सॉफ्टवेयर ऐसा लिया था, कैलेंडरली नहीं, दूसरा कोई था, तो इट वाज अ न्यू कंपनी, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ वेरी न्यू कंपनी, एंड दे कंप्लीटली सोल्ड मी। द रीजन व्हाई दैट, उनके फीचर्स बहुत बेसिक थे वो टाइम पे,
but when they launched, they actually told कि आज हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2016 में या 17 में 2017 जनवरी में मैंने लिया होगा फॉर एग्जाम्पल, दे क्लियरली टोल्ड मी कि जून 2017 में ये आएगा, दिसंबर 2017 में ये आएगा, 2018 में ये आने वाला है, 2019 में हमारा ये प्लान है. True. I look at the roadmap and this is the pre-sale. Right. They already sold me the product, even if they haven't created. जो फीचर्स की मुझे तलाश थी वो एक्चुअली 6 महीने या 1 साल के बाद आने वाला था. बट आई बॉट इन एडवांस जस्ट बिकॉज कि मुझे फीचर्स जब अपग्रेड होंगे तब मुझे इतने ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. तो आई एक्चुअली बॉट एट दैट सेम टाइम इवन दो आई डिड नॉट नीड इट, बट आई बॉट बिकॉज दे प्री सोल्ड मी. So when you're designing a software or something like that, share the entire roadmap with the people, share your plans, share the future updates, right? So and I just want to interrupt you because a question has, I'm not able to hold it, and I think this is the right time to ask you this question before you move ahead with the different more types of pre-sales. So many times it happens that people might get confused between giving some offers before the launch of the final product. So pre-booking hota hai kai baar, launching offers hota hai that if you are going to book this product before this date, you'll be getting flat 20-25% off. This is the number one thing. Number two thing is like you were mentioning about the movies. Then the movie release se pehle wo log jo ek hype create karte hai. So that is something what we normally understand as a hype create kar rahe hai because they are coming up with something. So exactly how do you want the layman, the businessman जो हमें अभी सुन रहे, बाद में हमारे recording को सुनेंगे, आप उनको कैसे बताना चाहते हो? What is the clear cut difference between pre-booking ऑफर के साथ और hype create करना? क्या ये दोनों pre-sale की कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल. देखो, सबसे पहली बात तो जो फ्लैट डिस्काउंट की बात होती है, जनरली मैंने अभी देना बंद कर दिया. आई थिंक पीपल शुड नॉट गिव समथिंग फॉर एट द डिस्काउंटेड रेट. पीपल शुड गिव बोनस. But that's a different topic by the way altogether. True. Now interesting thing ये है कि launch ये announcement करना मतलब तब आप sell नहीं कर रहे. You're not even selling. मान लो 2 महीने के बाद आपका launch हो रहा है आपका ऑफिशियली, 1 महीने तक आपको selling बिल्कुल नहीं करनी है. धीरे धीरे करके आप रोड मैप बताने हैं and then after let's say 3 या 4 वीक पहले आप अपना डोर खोलते कहते हैं ये अर्ली बर्ड ऑफर है, लॉन्च होने से पहले है, लॉन्च होने के बाद ये प्राइस होगी. And that's the way they can do. Again, never ever try to hard sell anything. Don't say कि भाई limited seat है, limited product है. It doesn't mean anything. Limited means nothing. There is no concrete figure. Yeah. If you say कि मेरे पास इतने 100 pieces पड़े हैं, तो 100 pieces आएंगे तब तक ये डिस्काउंट इसके बाद नहीं है. That is the exact figure. We know. I can say that. So this is something that people get wrong. Announcement is just announcement. It's just the information. It's just the news that is going to happen. Even in the local newspaper as well, if you look at the newspaper carefully, you'll find out there are some news material and information material, but this exactly is a advertisement. You probably have seen कोई स्कूल शुरू होने वाली तो जैसे कि भाई सूरत में ये जो संगठन है वो अपने स्कूल शुरू करने जा रहा है, उसका अभी खातमुहूर्त होगा या जो भी होगा, they are under construction or they are under planning. This is the pre-sale. Yeah. They are not asking you to get the admission, but it's giving you the information that it is going to happen. And that's pre-sale. Can you remind me the second question, please? So something that is the hype create करना. So one जैसे एक होता है कि flat discount that you have already answered, but when we are talking about the movie that people are meeting and the kind of hype create कर रहे हैं. So many times we see this, even the author, you being yourself as an author, so many authors are doing this nowadays that they'll announce that I'm writing a book on this and this I'm planning to launch in the month of August or maybe in the month of September. And meanwhile, by the time he'll keep talking about the book and book only. So वहां पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होता, कोई बोनस नहीं होता, सिर्फ एक हाइप क्रिएट करना होता है. So क्या हाइप क्रिएट करने को भी आप प्रीसेल कहते हैं? देखो, हाइप का मीनिंग क्या होता है, इस डेफिनेशन को समझने की जरूरत है. हाइप अपने आप क्या है कि फ्लैशी बताना, शाइनी बताना, जो प्रॉमिस नहीं डिलीवर करने वाला है उसको बताना, या फिर हाइप क्रिएट का मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन देना. You probably know, I think Krish movie starring ऋतिक रोशन, जब क्रिश पहले लॉन्च मतलब रिलीज होने वाली थी उसके पहले आई बीन टू मुंबई फॉर सम रीजन, और वहां पे मॉल में घूम रहा था. वहां पे ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी की लॉन्चिंग होने वाली थी. मतलब इट वाज अ प्री सेल इवेंट, मतलब 1 महीने के बाद मूवी आने वाली थी और ऋतिक रोशन वाज कमिंग फॉर अ प्रमोशन. सो व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग, देयर वाज अ स्टॉल जहां पे क्रिश के जो कपड़े थे वो बिक रहे थे, मास्क बेच रहे थे, टी शर्ट बेच रहे थे, एंड दिस इज हाउ ही इज प्रमोटिंग.
If you carefully look nowadays, it's very common. कोई भी मूवी 1-2 महीने के बाद लॉन्च होने वाली है, suddenly you see them everywhere on the TV. Yeah. They will go to Big Boss, they will go to Dance India, I don't know, I don't follow TV any at all. Yes. But कपिल शर्मा के शो में जाएंगे या फिर कोई सीरियल में चमक जाएंगे. What are they doing? They are just letting people know that we are coming. True. They are not pushing. I mean, they might be pushing afterwards कि भाई ये फिल्म जरूर देखने जाना, सिनेमा में जरूर जाना वगैरह वगैरह. But this is it, you know, they are giving the information. फोटोशॉप आप जानते हैं, फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है, इतना साल से वो लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करते ही आए, बट दे आल्सो डू द प्री सेलिंग. दे आल्सो टेल पीपल कि हम एक नए अपडेट पे काम कर रहे हैं. इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुराना अपडेट बेकार था, वो लोगों को काम करना नहीं आता है. नो, दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग, दे आर ऑलवेज लेटिंग यू नो दैट समथिंग कूल इज गोइंग टू हैपन. फॉर एग्जाम्पल, नोट सेव करने के लिए मैं एवरनोट नाम का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ. एवरनोट प्रोग्राम इज जस्ट लाइक माय लाइफलाइन, आई कैन से दैट. तो एवरनोट में कुछ नए फीचर्स आने वाले थे, सो दे एक्चुअली सेंट मी एन ईमेल कि हम नए बीटा वर्जन कुछ है एवरनोट का, तो आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसमें भाग ले सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, यू नो, आई लव एवरनोट. तो दे वर टेस्टिंग ऑन मी and I did not have to pay anything about this, but they were getting the feedback from me whether the product is really good or not, कहाँ पे क्या खामी है, खूबी है. They actually ask for my detailed feedback. अब वो फीडबैक का वो लोग क्या करेंगे, जब वो लोग एवरनोट बेचेंगे, उनकी वेबसाइट पे लोग बताएंगे देखो एवरनोट में इतनी इतनी खूबियां हैं. मैंने ही उनको बता दिया कि भाई इतनी सारी खूबियां हैं. Now they're going to use my words in their website or landing page or in their promotion. Yeah. Maybe, you know, अब देखना कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे होते हैं, इफ यू जस्ट लेट्स से आपके कंप्यूटर में कुछ खराबी आई, तो आपने कुछ सर्च किया, तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद नीचे सॉफ्टवेयर का नाम आएगा कि ये सॉफ्टवेयर खरीदने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. True. दिस इज ऑल्सो प्री सेल. आप अभी जो बता रहे हैं, मे बी यू कैन ऑल्सो अनाउंस कि भाई मेरा 2 महीने के बाद एक कोर्स आएगा, इसमें हम ये चर्चा करने वाले. दैट्स अ प्री सेल, राइट? कोई ऐसा आपने टीवी पे इंटरव्यू देखा होगा, जो म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो लोग भी प्री सेल करते हैं कि भाई करंटली बात में ऐसा नहीं था कि भाई देखो रिसेंटली अभी एक बात हो रही थी, उसमें मैं आई वाज टॉकिंग टू लेट्स से संजय लीला भंसारी एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. नाउ इतना बोला उसने कि वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. ही हैजंट गिवन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, पीपल पे अटेंशन, एक मिनट ये कुछ साथ में काम कर रहे हैं, राइट? नाउ दैट सिंगर हैजंट सेड एनीथिंग मोर अबाउट इट, बट इट क्रिएट्स द, यू नो, क्या इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं एंड दे आर शेयरिंग. आप देखना बिल्डर लोग जो होते हैं वो भी इसका कितना अच्छा उपयोग करते हैं. व्हेन बिल्डर, उसका एक भी फ्लैट नहीं बनता फिर भी पहले बेच देते हैं. यस, यू गॉट इट नाउ. सो आई थिंक थैंक यू सो मच मयूर. ये तो पॉइंट बहुत ही आपने अच्छा कहा है. लेकिन या सो गाइस, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ प्री सेल इवेंट दैट वी आर गोइंग टू हैव टुमारो. एंड दिस इज, देखिए, जो हम कर रहे हैं उसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव द 6th सोशल मीडिया डे गुजरात हैपन टुमारो एट 6 PM. अगर रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी. इट्स अ फ्री इवेंट. ऑलरेडी मोर देन 215 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड. एंड या देयर इज नो एज सच लिमिटेड वर्ड, बट हाँ कुछ लिमिटेशन होंगे यहाँ पर. सो ये भी एक प्री सेल इवेंट के तौर पर आप देख सकते हो, जो हम पिछले हफ्ते 10 दिन से कर रहे हैं. और जो मयूर ने कहा, जो कोर्स की बात कर रहे हैं, या सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर न्यू बैच ऑन 12th जुलाई. तो वो भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. मयूर, मैं सिर्फ देखो, ये जो वर्ड है ना, सेल वर्ड बहुत ही डरावना भी है, बहुत ही आपके मुंह में पानी लाने वाला भी है एट द सेम टाइम. So when normally people think about pre-selling, जो मैंने आपको आगे भी सवाल पूछा, most of the people will feel that before I launch, I need to sell my product. There has to be something. I need to get some amount in my pocket. So मुझे पता चले कि प्रोडक्ट कितनी वैल्यूएबल होगी आगे जाके. So कई लोग इस तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको मान देते हैं कि इसको प्री सेल करते हैं. अगर प्रोडक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट में अगर सक्सेसफुल गया, बाद में हम लार्जर स्केल पर उसको लॉन्च करेंगे. So I just want to understand from you that how the local business owners should take pre-sale as a must included strategy for the marketing. Is it offline or online? Anything. Okay, I think अब तो हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर वो सोचे तो किस तरीके से उनको इसको कंपल्सरी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट बनाना चाहिए. बिल्कुल. So local businesses again, see what they have to, they just have to release the information to the existing people. Yeah.
that they are working on it. Let's say, for example, I celebrate Christmas every year, and Christmas में plum cake खाने का एक रिवाज होता है. So Center Court अपने रेस्टोरेंट I know. You put that picture, so I do remember that. Center Court. So Center Court में जब मैं गया था, so December mid में गया था, तो I seen a poster that plum cakes will be available on Christmas Day. Yeah. And I asked the owner, Mr. Samir Modi, and I asked him that can I get plum cake before Christmas Day? He said no, on the Christmas Day only. And I said okay, so I have to come on Christmas Day. He said yes, you have to come on Christmas Day. That was a pre-sale. The pre-sale. That means yes, I'm going to make a dinner, and then I need plum cake because I wanted plum cake, and I think Center Court can make a very good plum cake. So I said okay, I got a schedule that सुबह या दोपहर को वहां जाके प्लम केक खरीदना है. ख्याल आ गया? This is how you can create. Now for example, अभी तो समर का सीजन था और अभी भी थोड़ा चालू है. You know सुरती खाजा. Yeah. Right? So you know very well going through and all those kind of things. So what happens when I went to those shops, somewhere about few months ago, they already say that this will be available from this month. They're pre-sold. Yeah. So whatever you are launching, you tell people that you're working on it. True. You just tell, and people will actually tell you that if they are interested to know more about it or not. Yeah. They will tell you. So this is how the local businesses can actually incorporate the same strategy. Now selling में आपने जैसे बताया लोगों को डर लगता है, is because they don't pre-sell. वो बना देते हैं, फिर अचानक से सरप्राइज करते हैं, हे देखो चमक जाओ मैंने कुछ बनाया है. And guess what, मैंने पहले बताया, people don't buy when you want to sell. True. People will buy when they want to buy, when they are ready to buy wholeheartedly. तो उनको कोई टाइम नहीं होता है. Then what happens when people, फिर बाद में क्या होगा, लोग पुश करते हैं बाय करने के लिए, and that is something really really dangerous. Like if I push you, you will also push me back. People don't want to blow up hard-earned money. Come on, कोई ऐसे पैसे थोड़ी उड़ा देगा. तो आपने बोला कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप ले लो, आज ही लॉन्च किया है और ये आपको पहले ग्राहक हो. No, they are not ready yet. It's like, माफ करना, लेकिन it's just more like a dating. You go and you meet, you understand each other, you tell, and they get to know. People really want to know you. People really want to know your business. People want to know your philosophy. People want to know how you work. Then only they will buy. Yeah. And this is what most people don't do. They are far too afraid to inform people that this is what we are working on. आपको बेचना नहीं है. बेचने के टेंशन कब आती है, जब आपके पास desperation होता है. When you are desperate, you will sub-communicate through your body language. And when you're desperate, people will see that you're desperate and they become desperate too. थोड़ी डिटेल में बात है, mirror neurons की बात करता हूँ, psychology की. But then they go away from you, and that is not how it should be working. So make announcement as soon as possible, right? Prepare them mentally, way before the event कि भाई ये ऐसा होने वाला है. हाइपी नहीं बनना है अपने को. हाइपी मतलब कूट के बताने के, देखो ये होगा वो होगा जबरदस्त. No, you are just informing. People hate those kind of stuff. I mean many times आपने भी कुछ देखे होंगे जो YouTube पे कुछ वीडियोस बनाते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं और धूम धड़ाका करते हैं. Those things don't work at all. When was the last time actually you sold something like the Dhoom Dharaka? Never. Nobody does that. But that is unfortunate part, that most of the people they literally follow these kind of people who are just shouting on the YouTube, and they just believe that this is only going to work for them also. Or they follow them blindly, and this is I think a very very sad part of the local businesses when it comes to following somebody blindly. So it's very unnatural. Yeah, it's very unnatural. और मैं आपके एक बात को मैं यहाँ पर बहुत ही seriously connect कर रहा हूँ, जो again we talk a lot, right? We talk a lot about the marketing, the need of the marketing. We do. And we also talk a lot about the confusion that people have developed between the marketing and the sales. क्योंकि जब आप प्री सेलिंग की भी बात कर रहे हो, you need to communicate. अगर आप announcement करते हो और एक बार करके फिर आप बैठ जाते हो, it is not going to help you. You need to continuously announce your pre-selling efforts. आपको उसको communicate करते रहना पड़ेगा. So I think that also people need to learn, right? Yeah, exactly. शेयर करो snippets, कुछ प्रोडक्ट के आपके फोटो दिखाओ उनको, या आपने कुछ मान लो आपके डिजिटल प्रोडक्ट है, कुछ सॉफ्टवेयर समथिंग है,
show them the roadmap. Yeah. कि आप क्या कर रहे हो अभी, कितने टाइम में रिलीज होगा वर्किंग, जस्ट टेल देम. लेट्स से एक बात है कि इथिक्स की बात हम लोग कई बार करते हैं भौतिक में जब मिलते हैं तो, Yeah. कि अगर आप इथिक्स से काम करेंगे, इफ यू आर ऑलरेडी डिलीवरिंग व्हाट यू आर प्रॉमिस्ड टू द कस्टमर्स, पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू इजीली. True. प्रॉब्लम कब आती है जब आप कुछ प्रॉमिस डिलीवर नहीं करते, तो आप में प्रेशर आता है कि लोग खरीद क्यों नहीं रहे, देन यू ट्राई टू पुश पीपल. फिर वे कहते हैं ना कि जोरदार डिस्काउंट देते हैं, फ्री देते हैं, ये करते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू डोंट डिलीवर द प्रोडक्ट एज यू प्रॉमिस. Yeah. अगर आपके ऑलरेडी कुछ पेइंग क्लाइंट है आपके कुछ, then it's easy for you to sell them over and over again because they trust you. And when it comes to digital marketer, I can think of Bhautik Seth, because Bhautik Seth and ये मेरे दिमाग में जड़ चुका है. Yeah. Not because we have been colleagues, not because we know each other well. I know you because you've been doing good job. I can trust you. Yeah. So let's say अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, अगर आपने ऐसी इमेज, अपनी पर्सनल इमेज ऐसी बनाए, ब्रांडिंग ऐसा किया है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो आपको आपके अनाउंसमेंट शेयर करने में शर्म नहीं आएगी. Absolutely. पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल थिंक कि नहीं, ये हमेशा जोरदार ही काम करते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई जब एप्पल वाले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको खाली कहना पड़ता है कि हमारा ये तारीख को प्रोडक्ट लॉन्च होगा, लोग सामने से आके बैठ जाएंगे देखने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, देखने दो, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यू. सो यहाँ पे समवेयर अलोंग द वे लोगों को ये एथिक्स के ऊपर भी थोड़ा जोर देना पड़ेगा. जो कस्टमर सर्विस का जो बेसिक जो लेसन होता है वो भी लोगों को सीखना पड़ेगा. सेलिंग अकेला ऐसा नहीं होता कि आपने बेच दिया तो बात खत्म. आपके कस्टमर बार बार आपके पास आए तो आपको सेलिंग में मेहनत कम करनी पड़ेगी. और वो बार बार क्यों आएंगे, जब आप जो बोल रहे हो वो आपने डिलीवर किया तभी हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट. फिर आप जो बोलते हैं ना अननेचुरल, लोग शाउट करते हैं, क्यों? क्योंकि दे ट्राई टू इम्प्रेस पीपल. एंड रिमेम्बर भौतिक भाई, यू नो, अगर आपने कोई लड़की को ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, क्या इम्प्रेस होती है? Come on, share the secret. Never. They realize, girls realize. In the past, never it happened. Unfortunately, never happened. Because never happened. When you try to impress people, you can never impress people. Yeah. Right. So when you have the substance, when you have something really valuable, people will come to you. People will value you. So that's what people need to focus on. But अगर आप announcement करेंगे पहले, if you already serve people well, people will actually know your tone. आपके टोन से मालूम पड़ जाएगा कि आपके दिल में आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपका रिजल्ट क्या बोलता है, आपका अभी तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है. ये सब भी इतना ही मैटर करता है. लेकिन हमेशा बताओ लोगों को कि हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा प्लान है. आप देखना कि आपको अगर कोई, मैं अपने बारे में बताऊं कि भौतिक भाई 2 साल के अंदर मैं ये करने वाला हूँ, इफ इट्स अ हायर विजन विच यू अप्रिशिएट और नॉट. Absolutely. And it's going to impress me a lot that the person is thinking not only about today or tomorrow, but he's thinking for coming 2 years as well. Yeah, even if you talk about 1 month only, कि अगले महीने ये करने जा रहा हूँ, अगर अच्छी बात है, बड़ी बात है, तो people will appreciate. True. तो आप छोटे बिजनेस में और बड़े बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है. See, I have been helping small businesses mostly because हम 90% तो small businesses है ना. 90%. बड़े बिजनेस कितने लोग हैं? जितनी भी बुक्स लिखी गई है मार्केट में, वो सब किसके लिए लिखी गई? बड़े लोगों के लिए लिखी गई है. We don't have the big organization, by the way. Most of the people who are listening to or watching right now, they have, शायद उनके पास एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा. शायद होगा तो 10, 15, 20 ही होंगे. मोस्टली इतने ही लोग होते हैं. दिस इज हाउ द बिजनेस रन्स. और यहाँ पे लोग कर सकते हैं. मयूर, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये भी देखा है कि दे डोंट हैव द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मार्केटिंग एट वेल. सो द बिजनेस ओनर वो खुद मार्केटर बनकर ही काम करता है. एंड आई ऑलवेज फील दैट द व्हेन बिजनेस ओनर बिकम्स द मार्केटर, ही ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजेस विद द बजट, बिकॉज मार्केटिंग नीड्स बजट. और एक ओनर जब सोचता है बजट के बारे में तो अपने आप से ही फाइट करता है, और एंड में ओनर जीतता है, अंदर का मार्केटर हारता है. बिल्कुल. और इसमें क्या है कि चलो अकेला रन करना बुरी बात नहीं है. इफ यू कांट रन, then you have to give your marketing work to someone who can do the work. You can outsource marketing to other agencies or something like that, like your agency. क्योंकि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है. इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड दैट इज नॉट अ वायबल ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट. बट बात ये है कि मोस्टली छोटे बिजनेस होते हैं, सबको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए. सबको अपने प्रोडक्ट को
इसी तरह लॉन्च करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम ये कर रहे हैं. You look at the builders, they do the same. You look at the Bollywood, they do the same. Even you look at the Olympic. ओलंपिक कैसे होता है? ओलंपिक क्या अचानक ही शुरू हो जाता है क्या कि भाई 15 दिन के बाद ओलंपिक आ जाओ? They prepare well in advance. You might have seen that Ahmedabad is also, competing for the to host the Olympic. You know that? Absolutely, yes, yes. So it's going to happen in 2034, I guess. Yes, yes. Yeah, and they are preparing right now. It's a pre-sale, by the way. It's a pre-sale. Even politician लोग भी ये करते हैं. So politicians जब भी so I hate talking about it, but the thing is they ऐसे कोई बात उड़ाते हैं, कोई कायदा लाने वाले हो, कोई योजना बनाए तो ऐसे बात उड़ाते हैं. They get a feedback that what's happening in the market, how people will react to it. Yes. Pre-sale हर जगह होता है. आप शादी करते हैं तो कैसे होता है? Right? नहीं वो so हम victim हर जगह पर बनते हैं, as a customer, as a voter, as a husband, हम सब जगह पे victim बन चुके हैं. हम पे हो रहा है pre-selling. लेकिन जब हमें करना होता है तो हम पीछे हो जाते हैं. मयूर, एक आखिरी सवाल before we wind it up for the day. Like you as a consultant, you have met so many people like this. I always meet this kind of people. When it comes to spend money by the local business owners, they don't want to give it a time. तो अगर आज आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, अगर आज आपने सोचा कि मुझे मार्केटिंग करना है, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद यू लिटरली वांट योर रिजल्ट ओवरनाइट, बट क्या क्या होना चाहिए? क्या जिस कंपनी को भले ही मार्केट में 4-5 साल हो चुके हो, लेकिन उसकी अभी तक की उसकी ब्रांड एस्टेब्लिश ही नहीं हुई है, नाउ दे रियलाइज दैट आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड बिकॉज आई एम पेइंग टू समबडी, आई एम पेइंग टू सम कंपनी, मैं अब रातों रात बहुत सारे लीड जनरेट करने लगूंगा या बहुत सारा सेल मेरा होने लगेगा. Don't you think that they need to give time also, because marketing is a slow and steady process? Marketing is slow and steady process, and business is again slow and steady process. Yeah. आप मुझे कितना साल से जानते हैं? More than 12 years now. 12 years. उसमें से 1 साल हमने साथ में काम किया था, और 11 साल से I'm running a business. Yes. When people start a business, if they don't have a vision to stay in the business for 10 to 15 years, they should not start a business. True. सिंपल सी बात है. लोगों को क्या करना है कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्या कि लोगों का देख के चालू किया. They don't know what is customer service, they don't know what is marketing, and this is what people need to know कि मार्केटिंग एजेंसी को भी हायर करे तो उनको भी अपना विजन बताए कि हम अगले 10-15 साल तक रहना चाहते हैं. बाय द वे, जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर वो बिजनेस पर्सन है तो दे ऑल्सो हैव एक डीप डाउन उनका होगा कि बिजनेस बंद करने के लिए कोई नहीं शुरू करता है, सबको रन करना है. लेकिन रन करने के लिए, जगह बनाने के लिए सालों का मेहनत चाहिए, सालों की तपस्या चाहिए. अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है तो यू शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस. Nobody can establish a business in just matter of few days only. हाँ, टाइम जो कम होता है उसका वो थोड़ा कम कर सकते हैं इफ यू हायर अ एक्सपर्ट. लेट्स से कि आपको कुछ काम करना लेकिन आपको नहीं आता, यू हायर एक्सपर्ट. घर में अगर आपका समझ लो कि पाइप में से लीकेज हो रहा है, well you can learn plumbing course, go to ITI, learn the course of 6 months or a year. आप पढ़ लो, वहां वापस आओ, वापस भी आके फिर पाइप को फिक्स करो. You won't do that. You hire the plumber, right? आपको अच्छी डिश खानी है, let's say you want to try lasagna or maybe a pizza or something like that. You can't cook it. What you gonna do? Well, no problem. आप जाओ संजीव कपूर के क्लास ज्वाइन कर लो या कोई भी कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो, एक्सपर्टीज पाओ, उसके बाद बनाओ. No, you go to restaurant. You hire the product. People don't buy the product. I mean, मेरा लास्ट पॉडकास्ट आया था, मेरे पॉडकास्ट का चैनल है लव योर बिजनेस पॉडकास्ट. जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, लव योर बिजनेस, सो आई टीच पीपल हाउ टू लव व्हाट यू डू. तो आप अगर लोग प्रोडक्ट बाय नहीं करते, लोग एक्चुअली प्रोडक्ट हायर करते हैं. यू हायर पिज्जा, यू हायर स्टारबक्स का कॉफी, राइट? एंड पीपल हायर फॉर सर्टेन टाइम, समटाइम्स शॉर्टर के लिए, समटाइम्स लॉन्गर टाइम के लिए हायर करते हैं. नाउ so the thing is कि भाई आप अगर कुछ नहीं जानते, you can hire someone else to do it. मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिकल वायर जल गया है, what am I supposed to do? Do I need to go and learn, wireman का course at ITI? No, I should hire a wireman and fix that issue. मेरे घर में फ्रीज खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, बराबर ना? एसी खराब हो गया तो क्या करूंगा? मैं एसी रिपेयर करने का कोर्स करूंगा क्या? मैं यूट्यूब पे जाके देखूंगा, शायद यूट्यूब पे मुझे आंसर मिल भी जाए, लेकिन वो कैसा होगा आंसर? यू नो वेरी वेल. कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है, कोई भी, एनीवन.
ये सोशल मीडिया ने लोगों को इतना पावरफुल वेपन दे दिया कि कोई भी कुछ भी व्यक्ति करता है, आज कुछ भी करता है, कुछ भी दैट्स द राइट वर्ड, कुछ भी कर सकता है। तो एक सॉन्ग आपने सुना होगा डॉक्टर आल्बन का, इट्स माय लाइफ। Yeah, well, या सो you are उसमें एक reminding me of the 90s and 2000s. एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम द सेम वर्ल्ड मैन, सो उसमें एक Yeah, सेंटेंस है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, true. लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सो अगर छोटा नॉलेज अपने पास होगा वो डेंजरस ही होगा। सो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, सो इफ यू हायर एनी एजेंसी और एनी एक्सपर्ट, देन दे विल डिक्रीज योर लर्निंग कर्व। आप कर लेंगे नो डाउट, उसके बगैर भी काम कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तब तक आपका टाइम जाएगा, आपकी रेवेन्यू जाएगी। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम एंड मनी, यू हैव टू हायर एक्सपर्ट, True. राइट? इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट बिकॉज यू गोइंग टू कवर दैट मनी एनीवे। लेकिन क्या है कि 1 या 2 दिन में या महीने में कोई बिजनेस ऐसे फ्लाई ऑफ नहीं कर सकता। काफी पेशेंस की जरूरत पड़ती है, काफी इनपुट डालने पड़ते हैं। स्पेसिफिकली मार्केटिंग, आज मार्केटिंग लोग क्या मजाक समझ रखा है कि लोग पेपर में ऐड देना उसको मार्केटिंग कहते हैं, ब्रोशर देना उसको मार्केटिंग कहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आई मीन जब मैंने भी शुरुआत की तो मैंने भी मार्केटिंग एजेंसी को मिला था, दे से ओके ब्रोशर छापते हैं हम लोग, तो ब्रोशर छापने का प्रिंटर प्रेस भी उसका ही आदमी होता है, डिजाइनर भी उसी का होता है, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भी वही उसी का आदमी होता है, वो कमीशन खाता है। लॉस किसको हुआ? Ah, yeah. लोग पेपर में ऐड देने को डिजिटल मतलब वो मार्केटिंग कहते हैं। दैट Marketing इज कहते नॉट हैं. मार्केट, इट इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट यू। और ये जो प्री सेल की बात की, मार्केटिंग इज एक्चुअली प्री सेल। यू क्रिएट द बuzz अराउंड, you share the information without being pushy or sleazy salesman, right? लोग मार्केटिंग मतलब क्या है कि बड़े बड़े पोस्टर लगाना और धूम धड़ाका करना, फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट बनाना। That this is what TikTokers do, and you know what TikTokers are, how TikTokers are living right now. Yes, 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 yes. ऐसे करके आप लोगों का 5 या 10 सेकंड के लिए अटेंशन पा सकते हैं। Can you get them interested? That's not possible. And if you Yeah, remember last social media में, I was fortunate enough to yeah. one of It the was speaker of the social media event. 2019. 2019 exactly. Yes. So वो टाइम पे मैंने 2 ही बात पे चर्चा की थी, रिमेंबर हाउ टू गेट पीपल पे अटेंशन टू यू एंड हाउ टू गेट दैट इंटरेस्टेड। आप लोगों का अटेंशन पाओ, दैट डजंट मीन दे गोना बाय योर प्रोडक्ट, दे विल बाय योर प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर इंटरेस्टेड। और ये इंटरेस्ट जनरेट करने का काम मार्केटिंग वालों का होता है। But most people are getting wrong, and fortunately there are few people just like you, and very few I can know in India as well. Yeah. Nowadays, any graduate can claim themselves as a digital marketer, and I look at their LinkedIn profile, and you see underneath their name, digital marketer, SEO expert, philanthropist, visionary. I don't know. Life coach. God, We cannot forget life coach. no, don't talk about that. Okay, great. Thank you so much, Mayur. I think that was wonderful talk as usual. Whenever we sit As usual. together, मतलब ऑनलाइन होता है कि हम टेबल के ऊपर मतलब we meet on the table and yeah, like we have all this kind of discussion. आपका कोल्ड कोक के साथ. So guys, if you are looking for a sales consultant, I think you can approach Mayur Bardolia. You can go and check his profile and you can got all the contact details over there. You can just go and send him hi and he'll definitely get back to you. And जब pre-sale की बात करें तो मैं आपको वापस बता देना चाहता हूँ that we have 6th Social Media Day Gujarat event coming up tomorrow at 6 p.m. और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, you are going to get this link right away in the comment section. आप just जाइए, आप रजिस्टर कर दीजिए और बहुत मजा आएगा because there are people who are going to talk on social media and SEO and everything. Yes, sir. Can I? Okay, sorry Yes, to interrupt, my friend. Yes, please. I remember back in, I think 2013 में आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया था, right? 2014 it was. 2014. Yeah. And I remember आपने भी अपने आप को प्री सेल किया था. I precisely remember. Can you remember what I'm going to say? No, but maybe I. जब आपने अपनी जॉब, आपने वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ी थी, you were very much popular among your audience. Yeah. Still you left there and then started. आप रात को 1:30 बजे कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे. Yes. I clicked the picture and I uploaded on Facebook. I still remember that. Yes, absolutely. And you posted the picture. You said it's a midnight. I'm still learning. Yeah. That was a pre-sale. The new marketing hero is going to be in the market. Thank you so much for remembering because मैं तो खुद भूल गया था क्योंकि कंटेंट तो बन जाता है लेकिन फिर याद नहीं रखा जाता. But that is the power of content, right?
But that's the pre-sale, by the way. That was the pre-sale. That was a pre-sale. There was like a signal to me that now what Bhautik is doing, he's going to do digital marketing. And at that time, digital marketing was just like a rocket science, if you know. So I thought, okay, now he's going to be digital marketer, but he's still learning. So you actually put the seeds in my brain. आपने मेरे दिमाग में बीज बो दिया था कि भौतिक से डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आ रहे हैं. So that's a classic example of yours about pre-sale. So pre-sale is more like लोगों के दिमाग में बीज बोना, धीरे-धीरे पानी डालना और पेड़ खुद ब खुद धीरे-धीरे आता ही रहेगा. I think that's what I need to say. Perfect. And I think बहुत ही अच्छा आपने याद दिलाया मयूर, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखें. And I think even if you don't want directly to hire Mayur as your consultant, you can just go and share the cup of coffee. Just go and do some random talk with him, and I'm sure that you are going to take him on board. Because I know him personally for all these years, or the kind of knowledge that he has and the kind of openness जो मयूर के पास है, खास करके बिजनेस ओनर्स के लिए, he is very upfront. वो कभी भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे. वो हमेशा बोलते हैं this is right and this is wrong. He's that kind of sales consultant. I think you should not miss him, meet once at least. Thank you so much once again, Mayur. Visit my website mayurbardolia.com. Please mayurbardolia.com पर भी आप जाइए. And definitely सुनिएगा. Love your business podcast. Love your business podcast. तो बहुत सारी चीजें हैं मयूर के पास जो आपको, आपके ब्लॉग अगर पढ़ने हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप उनके बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. डेफिनेटली पॉडकास्ट तो है ही है. So guys, thank you so much all of you for joining, and do join again tomorrow 6 o'clock Social Media Day Gujarat. And अगर आप एंड तक रहेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जो पोस्ट इवेंट सरप्राइज होगा, जो मैं अभी बोल नहीं सकता. मेरी टीम ने मुझे मना किया है बोलने के लिए. ये उनके लिए ही है जो थ्रू आउट कल पूरे 1.5 घंटे के पैनल डिस्कशन में रहेंगे. उसके लिए सरप्राइज होगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Thank you for inviting. Take care. Bye bye.